Hello friends, in last lecture we discussed on ancient Indian literature. Now topic number 3. Medieval literature. ये अपना टॉपिक नंबर 3 मेडिएवल लिटरेचर होता एंशियंट इंडियन लिटरेचर. नाउ मेडिएवल लिटरेचर was generally composed in different 14 languages. Different कितनी लैंग्वेजेस? 14 लैंग्वेजेस. इसमें आपको 14 लैंग्वेजेस में किसने कौन से एपिक बनाए वो सब आपको याद रखना है इन मेडिएवल लिटरेचर. तो ड्यूरिंग मेडिएवल एज literature was composed in 14 languages, out of which now language number first Sanskrit. Language number first Sanskrit. In Sanskrit, first Somdeva wrote Katha Sarit Sagar. Second, Kalhana wrote Rajatarangini. Third, Jayadeva wrote Geet Govind. Jayadeva wrote Geet Govind. During medieval age, I again repeat, during medieval age, literature was composed in different 14 languages, out of which now first language number 1 Sanskrit. So in Sanskrit, Somdeva wrote Katha Sarit Sagar, Kalhana wrote Rajatarangini, Jayadeva wrote Geet Govind, out of which Katha Sarit Sagar was the first epic of Kashmir. मतलब कथा सरित सागर कश्मीर का क्या है? सबसे पहला एपिक. सेकंड, राजतरंगिनी इज आवर फर्स्ट हिस्टोरिकल एपिक ऑफ इंडिया. मतलब इंडिया का सबसे पहला हिस्टोरिकल एपिक कौन सा? राजतरंगिनी. एंड गीत गोविंद is a finest poem. Git Govind is a finest poem. I again repeat once more. During medieval age, literature was composed in different type of 14 languages, out of which first Sanskrit. In Sanskrit, Somdeva wrote Katha Sarit Sagar, which is first epic of Kashmir. Second, Kalhana wrote Rajatarangini, which is first historical epic of India. Third, Jayadeva wrote Geet Govind, which is finest poem. जिसको क्या कहा जाता है? एक अच्छी सी poem means कविता. In which language? Sanskrit. Now, language number 2, Hindi. Which language? Hindi. In Hindi, चंद बरदाई. इंसान का नाम क्या है? चंद बरदाई. क्या नाम है? चंद बरदाई. यही चंद बरदाई wrote पृथ्वीराज रासो. कौन सी किताब लिखी इन्होंने? पृथ्वीराज रासो. विच एक्सप्लेन अबाउट हेरोइक डीड स्टोरी, हेरोइक एडवेंचर स्टोरीज of Prithviraj
चौहान, ऑफ पृथ्वीराज चौहान। लैंग्वेज नंबर सेकंड याद रही, हिंदी। इन हिंदी चंद बरदाई रोट पृथ्वीराज रासो, which deal with explain give us information regarding about पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, यही पृथ्वीराज रासो was the earliest book of Hindi literature. It was the first book of Hindi literature. Was the first book of Hindi literature. ये हिंदी लिटरेचर की सबसे पहली क्या है किताब, कौन सी? पृथ्वीराज रासो, नाम है पृथ्वीराज रासो। नाउ लैंग्वेज नंबर 3 तमिल। क्या नाम? तमिल। इन तमिल लैंग्वेज कंबन, इंसान का नाम है कंबन। क्या नाम? कंबन। यही कंबन रोट रामायणा। कंबन रोट रामायणा, बट इन विच लैंग्वेज? तमिल लैंग्वेज। नाउ लैंग्वेज नंबर 4 तेलुगु। कौन सी लैंग्वेज? तेलुगु। कौन सी लैंग्वेज? तेलुगु। इन तेलुगु लैंग्वेज द किंग ऑफ विजयनगर नेम कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय, क्या नाम है? कृष्णदेवराय। द किंग ऑफ विजयनगर, द किंग ऑफ विजयनगर, विजयनगर के राजा थे। क्या नाम था? कृष्णदेव राय। यही कृष्णदेव राय रोट आमुक्त माल्यदा। आमुक्त, क्या नाम? आमुक्त माल्यदा। कई लोग बोलते हैं माल्यद और कई लोग बोलते हैं माल्यदा। तो यही आमुक्त माल्यदा was the finest epic of तेलुगु लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? तेलुगु। ये अपनी लैंग्वेज नंबर बोलो 4। चलो सबसे पहले 4 लैंग्वेज याद रही। सबसे पहले संस्कृत। सोमदेवा रोट कथा सरित सागर, विच इज फर्स्ट एपिक ऑफ बोलो कश्मीर। सेकंड कल्हना रोट राज तरंगिनी, which is first historical epic of India. Third, Jayadeva wrote Geet Govind, which is finest poem of world, which is considered as a one type of finest poem out of other finest poem in world. Second, during medieval age, literature was also composed in Hindi. Literature कौन सी लैंग्वेज में बना? हिंदी। In which Chand Bardai wrote Prithviraj Raso, which explain about heroic story, adventure stories, edit stories of Prithviraj Chauhan, and which is first book of a Hindi literature, जो हिंदी लिटरेचर की सबसे पहली क्या है? किताब है। थर्ड, तमिल। During medieval age, literature was also composed in Tamil language, in which कंबन रोट रामायणा। कंबन ने क्या लिखा? रामायण, बट कौन सी लैंग्वेज में? तमिल। नाउ लैंग्वेज नंबर 4 तेलुगु। द किंग ऑफ विजयनगर नेम कृष्णदेव राय। क्या नाम था? कृष्णदेव राय। यही कृष्णदेव राय रोट आमुक्त माल्यदा। कृष्णदेव राय रोट आमुक्त माल्यदा। इन विच लैंग्वेज? तेलुगु लैंग्वेज। ये आपकी लैंग्वेज नंबर 4। साथ में लिखते रहना, अगर पॉसिबल है तो नोट में साथ में लिखते रहना ये सब चीजें। चारों लैंग्वेज याद रही, संस्कृत, हिंदी, तमिल एंड फोर्थ इज तेलुगु। फोर्थ इज विच लैंग्वेज? तेलुगु। कौन सी लैंग्वेज? तेलुगु। नाउ लैंग्वेज नंबर 5। नाउ लैंग्वेज नंबर बोलो 5। चारों लैंग्वेज याद रही पहले, वो बोलो सभी लोग। पहले संस्कृत, सेकंड हिंदी, थर्ड तमिल एंड फोर्थ बोलो। फोर्थ तेलुगु। विच लैंग्वेज? तेलुगु। नाउ लैंग्वेज नंबर 5
Malayalam. Malayalam. During medieval age, literature was also composed in Malayalam, in which many epics were composed. साथ में लिखते रहना, in which many epics were composed, जिसमें बहुत सारे क्या बने, एपिक्स बने. नाउ लैंग्वेज नंबर 6 कन्नड़ या कन्नड़ा. क्या नाम? कन्नड़ या कन्नड़ा. इन कन्नड़ लैंग्वेज राइटर का नाम याद रखना, पंपा, पुन्ना और रन्ना. पंपा, पुन्ना और रन्ना. आउट ऑफ विच पंपा रॉट आदि पुराण. आदि पुराण. क्या नाम? आदि पुराण. और दूसरा है विक्रमार्जुन विजयंती. दूसरी किताब का नाम विक्रमार्जुन विजयंती. विजयंती. पुन्ना रॉट शांति पुराण. पुन्ना रॉट शांति पुराण. रन्ना रॉट गदायुद्ध. गदायुद्ध. गदायुद्ध और अजीत पुराण या अजीतनाथ पुराण. अजीतनाथ पुराण. तो ड्यूरिंग मेडिवल एज लिटरेचर वॉज ऑल्सो कंपोजिंग, बोलो, कन्नड़ लैंग्वेज. आउट ऑफ हिज फर्स्ट पंपा. पंपा रॉट आदि पुराण एंड विक्रमार्जुन विजयंती. पुन्ना रॉट शांति पुराण और रन्ना रॉट गदायुद्ध और अजीतनाथ पुराण. इन विच आदि पुराण गिव अस इंफॉर्मेशन ऑफ आदिनाथ जी. शांति पुराण डील विथ लाइफस्टाइल या एक्सप्लेन अबाउट या गिव अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शांतिनाथ जी. एंड अजीतनाथ पुराण गिव अस डिटेल ऑन अकाउंट ऑफ अजीतनाथ जी. अजीतनाथ जी आपने नाम सुना होगा इन जैन रिलीजन. आदिनाथ जी, शांतिनाथ जी, अजीतनाथ जी. ये लैंग्वेज नंबर 6. नाउ लैंग्वेज नंबर 7 राजस्थानी. राजस्थानी. कौन सी लैंग्वेज? राजस्थानी. ड्यूरिंग मेडिवल एज मेनी हेरोइक स्टोरीज. हेरोइक स्टोरीज, बहुत सारी हेरोइक स्टोरीज वर ऑल्सो कंपोज इन राजस्थानी लैंग्वेज. Many heroic stories were also composed in which language? Rajasthani language. Like as a Alha, second Udal, Alha Udal, and Bisaldev Raso. Bisaldev Raso. ये सब हेरोइक स्टोरीज है. इट मीन्स एडवेंचर. साहस नहीं बोलते हम लोग, एडवेंचर. ये सब स्टोरियाँ कंपोज हुई थी मेडिवल एज में. बट इन विच लैंग्वेज? बट इन राजस्थानी लैंग्वेज. कौन सी लैंग्वेज में कंपोज हुई? राजस्थानी लैंग्वेज. ये लैंग्वेज नंबर 7. नाउ लैंग्वेज नंबर 8 गुजराती. क्या नाम? गुजराती. तो ड्यूरिंग मेडिवल एज ऑल्सो लिटरेचर वॉज कंपोज इन गुजराती, इन विच नरसिंह मेहता, आपने नाम सुना होगा, नरसिंह मेहता. एंड सेकंड मीराबाई. नाम याद आए दोनों के? तो यही नरसिंह मेहता एंड मीराबाई. नरसिंह मेहता एंड मीराबाई कंपोज डिवोशनल सॉन्ग्स. कंपोज भी सॉन्ग्स. कंपोज बोलो डिवोशनल सॉन्ग्स. सेम एज लैंग्वेज नंबर 9 मराठी. सेम एज लैंग्वेज नंबर 9 विच लैंग्वेज? मराठी. इन मराठी नामदेव एंड एकनाथ, इंसान के नाम क्या है? नामदेव और एकनाथ. क्या नाम बोलो? नामदेव और एकनाथ. तो यही नामदेव एंड एकनाथ बोलो ऑल्सो कंपोज डिवोशनल सॉन्ग्स. इन लोगों ने भी क्या बनाया बोलो? डिवोशनल सॉन्ग्स. बट इन विच लैंग्वेज? मराठी. ये आपकी लैंग्वेज नंबर बोलो 9. नाउ लैंग्वेज नंबर 10 बंगाली. नाउ लैंग्वेज नंबर 10 कौन सी लैंग्वेज? बंगाली. इन बंगाली लैंग्वेज
फर्स्ट कृतिवासा, क्या नाम है? कृतिवासा। यही कृतिवासा रोट रामायण, साथ में लिखते रहना, कृतिवासा रोट रामायण। सेकंड है चंडीदास, सेकंड नाम क्या है? चंडीदास। क्या नाम बोलो? यही चंडीदास रोट थाउजेंड्स ऑफ लिरिक, थाउजेंड्स ऑफ लिरिक या हंड्रेड्स ऑफ लिरिक्स, बहुत सारे लिरिक्स लिखे हैं उन्होंने। एंड थर्ड चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य नाम सुना होगा आपने, चैतन्य महाप्रभु। क्या नाम बोलो? चैतन्य महाप्रभु रोट डिवोशनल सॉन्ग्स, रोट डिवोशनल सॉन्ग्स। उन्होंने कौन से सॉन्ग्स लिखे? डिवोशनल्स, लाइक एज नरसिंह मेहता, मीराबाई, नामदेव, एकनाथ एक्सेट्रा। तो कितनी लैंग्वेज हुई? 10 याद रही। सबसे पहले संस्कृत, सेकंड हिंदी, चलो थर्ड हिंदी के बाद याद करो, थर्ड तमिल, फोर्थ तेलुगु, फाइव मलयालम, 6 कन्नड़, 7 राजस्थानी, 8 गुजराती, 9 मराठी, 10 बंगाली। उसमें बंगाली में नाम याद रहे सभी? कृतिवासा रोट रामायणा इन बंगाली लैंग्वेज, चंडीदास रोट थाउजेंड हंड्रेड्स ऑफ लिरिक, एंड थर्ड चैतन्य महाप्रभु, यही चैतन्य महाप्रभु रोट बोलो डिवोशनल सॉन्ग्स। नाउ लैंग्वेज नंबर 11, नाउ लैंग्वेज नंबर 11 नेम अवधी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? अवधी। इन अवधी लैंग्वेज इंसान का नाम है मुल्ला दाऊद। क्या नाम? मुल्ला दाऊद। यही मुल्ला दाऊद रोट चंद्रायना, मुल्ला दाऊद रोट बोलो चंद्रायना। सेकंड नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, लिखते रहना। क्या नाम? मलिक मोहम्मद जायसी रोट पद्मावत, पद्मावती या पद्मावत। थर्ड है कुतुबन, थर्ड नाम क्या है? कुतुबन। यही कुतुबन रोट मृगावती, कुतुबन रोट बोलो मृगावती। एंड तुलसीदास, क्या नाम है? तुलसीदास। यही तुलसीदास रोट उत्तर रामचरित, उत्तरामचरित। ये कौन सी लैंग्वेज में नाम याद रखने सब? अवधी। फर्स्ट मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद रोट बोलो चंद्रायना, मलिक मोहम्मद जायसी रोट पद्मावती, कुतुबन रोट मृगावती, एंड तुलसीदास रोट उत्तर रामचरित। इन विच लैंग्वेज? 11 अवधी। नाउ लैंग्वेज नंबर 12 पर्शियन। कौन सी लैंग्वेज? पर्शियन। इन पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज नाम है जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी। क्या नाम है इंसान का? जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी रोट तारीखे फिरोज शाही, बराबर देखते रहना, तारीखे फिरोज शाही। क्या नाम? तारीखे फिरोज शाही। एंड सेकंड नाम है फतवा ए जहांगीरी, फतवा ए जहांगीरी। इंसान का नाम क्या है? जियाउद्दीन बर्नी। यही जियाउद्दीन बर्नी रोट बोलो तारीखे फिरोज शाही, एंड सेकंड बोलो फतवा ए जहांगीरी। आउट ऑफ विच तारीखे फिरोज शाही, यही तारीखे फिरोज शाही, गिव अस डिटेल, गिव अस डिटेल।
on the various dynasty like as a Khilji and Tughlaq, like as a Khilji and the Tughlaq, खिलजी एंड तुगलक, ये डायनेस्टी के बारे में है, खिलजी और तुगलक डायनेस्टी के बारे में। किसमें किसमें बोलो, तारीखे फिरोज शाही एंड सेकंड फतवा है जहादारी। तो जियाउद्दीन बर्नी रोड तारीखे फिरोज शाही एंड फतवा जहानदारी या जहांगीरी, दो नाम है, फतवा जहानदारी या जहांगीरी। इन विच लैंग्वेज, पर्शियन। out of which Tariq Firoz Shahi deal with, give us information, explain about, describe, mention regarding Khilji and बोलो तुगलक डायनेस्टी। whereas फतवाए जहांदारी, कौन सी किताब, फतवाए जहांदारी was prepared on base of political principles। दो किताब बनाई, किन्होंने, जियाउद्दीन, बोलो जियाउद्दीन बर्नी, है दिमाग में। दूसरा नाम है अमीर खुसरो, बराबर देखना, क्या नाम, अमीर खुसरो, इंसान का नाम है अमीर खुसरो। यही अमीर खुसरो रॉट आशिका, कौन सी किताब लिखी, आशिका। सेकंड नूह, थर्ड सीपीहर, फोर्थ किरातुल सदायन, फिफ्थ खज़ैन उल फतेह क्या फतह, ये सब किताबें लिखी। किन्होंने, बोलो किन्होंने, अमीर खुसरो, आशिका, नू, सीपीहर, किरातुल सदायन एंड खज़ैन, बोलो खज़ैन उल फतेह। ये भी अमीर खुसरो वॉज नॉन एज तूतीय हिंद, इनको बोलते हैं तूतीय हिंद, मतलब पैरट ऑफ हिंद, हिंद का पैरट मीन्स पोपट बोलते हैं, सुना है नाम आपने, यस। तो अमीर खुसरो इज ऑल्सो नॉन एज तूतीय हिंद इन अवर इंडियन हिस्ट्री। बिकॉज ऑफ यही अमीर खुसरो कॉल्ड हिंदवली लैंग्वेज, which is generally spoken around हिंदी, अराउंड दिल्ली के अराउंड जो भी लैंग्वेज बोली जाती थी, इसको ये क्या बोलते थे, अमीर खुसरो हिंदवली। और यही अमीर खुसरो जनरली ट्राई टू मैक्सिमम प्रेज ऑफ आवर इंडियन बिल्डिंग्स, फ्लोरा फौना, इंडिया का फ्लोरा फौना के बारे में इन्होंने बहुत सारे प्रेज किए, इसीलिए यही अमीर खुसरो वॉज नॉन एज तूतीय हिंद अवर इंडियन हिस्ट्री। तीसरा नाम है जैनुल अबीदीन, क्या नाम, जैनुल अबीदीन। यही जैनुल अबीदीन ट्रांसलेटेड महाभारत एंड राजतरंगिणी, महाभारत याद आया नाम, तो यही महाभारत एंड राजतरंगिणी इनटू पर्शियन लैंग्वेज। राजतरंगिणी कुछ याद आया, कलर ने लिखा था इन संस्कृत में। तो दुनिया के बहुत बड़े दो वेल नोन या फेमस एपिक्स है, जिसको जैनुल अबीदीन ने क्या किया, ट्रांसलेट किया इनटू विच लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज। ये है आपकी लैंग्वेज नंबर, बोलो, ये है आपकी लैंग्वेज नंबर 12। नाम याद रहा, जियाउद्दीन बर्नी रॉट तारीखे फिरोज शाही एंड फतवाए जहांगीरी। आउट ऑफ इस तारीखे फिरोज शाही मेंशन अबाउट, बोलो, खिलजी एंड तुगलक डायनेस्टी, whereas फतवाए जहांदारी was prepared on the base of political principles। सेकंड अमीर खुसरो, यही अमीर खुसरो रॉट आशिका, नू, सीपीहर, किरातुल सदायर एंड खज़ैन उल फतह। नाम याद रहा, अमीर खुसरो। और तीसरा नाम है जैनुल अबीदीन, यही जैनुल अबीदीन रॉट, बोलो महाभारत एंड राज तरंगिनी इनटू विच लैंग्वेज, इनटू पर्शियन लैंग्वेज। ये आपकी लैंग्वेज नंबर, बोलो, 12। कौन सी, पर्शियन। कौन सी लैंग्वेज, पर्शियन, साथ में लिखते रहना, लैंग्वेज नंबर 12। अब आएगी उसके बाद लैंग्वेज नंबर, बोलो,
लैंग्वेज नंबर 13। नाउ लैंग्वेज नंबर 13 नाम है टर्की। कौन सी लैंग्वेज बोलो? टर्की। क्या नाम? लैंग्वेज का नाम बोलो, तुर्की या टर्की लैंग्वेज। इन टर्की लैंग्वेज सबसे पहले नाम आएगा बाबर। क्या नाम? बाबर। यही बाबर रॉट तुजु के बाबरी, तुजु के बाबरी, तुजु के बाबरी, बाबर रॉट तुजु के बाबरी। यही तुजु के बाबरी was autobiography of Babur, which was later known as Baburnama, which was later known as Baburnama, translated into Persian language। बाद में वो पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ विथ विच नेम? विथ बाबरनामा। बाबर के बाद गुलबदन। क्या नाम? गुलबदन, सिस्टर ऑफ हुमायूं। भाई हुमायूं की सिस्टर थी, सिस्टर ऑफ हुमायूं। हुमायूं नाम सुना है आपने? तो हुमायूं की सिस्टर नेम बोलो गुलबदन। यही गुलबदन रोट हुमायूं नामा, गुलबदन रोट हुमायूं नामा। इन विच लैंग्वेज? इन टर्की लैंग्वेज। हुमायूं के बाद आए जहांगीर। क्या नाम? जहांगीर। यही जहांगीर रोट तुजु के जहांगीरी, जहांगीर रोट तुजु के जहांगीरी, जहांगीर रोट बोलो तुजु के जहांगीरी। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट अकबर। जहांगीर के बाद नाम क्या बोलो? अकबर। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर एक थे केशव दास, केशव दास। अकबर के रेन के दौरान, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, नाम था केशव दास। यही केशव दास रॉट ऐसे, केशव दास रॉट ऐसे ऑन लव एंड सेपरेशन, ऑन लव एंड सेपरेशन। सेकंड रहीम। क्या नाम था? रहीम। रहीम रॉट दोहाज। क्या नाम? दोहाज। थर्ड अब्दुल फजल, अब्दुल फजल। यही अब्दुल फजल रॉट आईने अकबरी, आईने अकबरी, आईने अकबरी। केशव दास रॉट ऐसे ऑन लव एंड सेपरेशन। रहीम रॉट दोहाज, आपने सुना होगा रहीम के दोहरे, हाँ वही। थर्ड अब्दुल फजल, यही अब्दुल फजल रॉट बोलो, अब्दुल फजल रॉट बोलो आईने अकबरी, आईने अकबरी। चौथे इंसान थे फैजी। क्या नाम? फैजी। यही फैजी रॉट अकबरनामा, अकबरनामा। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। फैजी अब्दुल फजल के ब्रदर थे, ये दोनों सगे भाई थे। तो यही फैजी रॉट अकबरनामा, बट इन पर्शियन लैंग्वेज, बट इन पर्शियन लैंग्वेज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां। शाहजहां भी अपने नाम सुना है। तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां पोएट बिहारी, पोएट बिहारी, कवि का नाम क्या था? बिहारी। यही बिहारी रॉट बिहारी सतसई, बिहारी रॉट बिहारी सतसई। तो ये सब कौन सी लैंग्वेज में नाम याद रखने हैं? टर्की। बाबर रॉट तुझे के बाबरी, विच वॉज लेटर ट्रांसलेटेड विथ बोलो, विथ विच नेम? बाबरनामा इन पर्शियन लैंग्वेज। गुलबदन हु वॉज द सिस्टर ऑफ हुमायूं रॉट हुमायूंनामा। जहांगीर और तुजु के जहांगीरी, ये भी है ऑटोबायोग्राफी ऑफ जहांगीर। तुजु के बाबरी is also considered as autobiography of Babur. During the reign of Akbar, Kesav-Das wrote essay on love and separation. Rahim wrote बोलो दोहाज। अब्दुल फजल wrote आईने अकबरी and अकबरनामा। अबुल फजल wrote आईने अकबरी, my mistake. Faizi wrote अकबरनामा, but in which language? Persian. Now Shahjahan. So during the reign of Shahjahan, poet Bihari wrote बिहारी सतसई, पोएट बिहारी रॉट बोलो बिहारी सतसई। ये आपकी लैंग्वेज नंबर 13। एंड लास्ट लैंग्वेज नंबर 14 उर्दू। कौन सी लैंग्वेज? उर्दू। कौन सी लैंग्वेज? उर्दू। इन उर्दू लैंग्वेज नाम है पोएट मोहम्मद हुसैन आज़ाद। पोएट का नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद।
यही मोहम्मद हुसैन आज़ाद रॉट दरबार अकबरी। क्या लिखा उन्होंने? दरबार अकबरी। जैसे आईन अकबरी याद करो, कहा गया ये रहा आईन अकबरी was written by Abul Fazl, same as दरबार अकबरी was written by Muhammad Hussain Azad. In which language? Urdu. In this way, during medieval age, कौन सा एज याद करो? medieval age, literature was composed in 14 languages. कितनी लैंग्वेजेस में? 14. आपको ऐसे ये फॉर्मेट पूरी याद रखनी है पहले, बाद में क्लास खुलने के बाद मैं आपको समझाऊंगा इसको कैसे प्रिपेयर करनी है। बट हाँ, ऐसे डिट्टो पहले प्रिपेयर करो, ऐसी कंडीशन में यही फॉर्मेट को। कितने लैंग्वेज के साथ? 14. शॉर्ट नोट का नाम है मेडिएवल लिटरेचर। कितनी लैंग्वेज में बना? 14 लैंग्वेज। नाम याद रहे लैंग्वेज के पहले? तो याद रहे ना, संस्कृत, हिंदी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, कन्नड़, याद आया कुछ? बाद में बंगाली, अवधी, पर्शियन, टर्की, उर्दू, ऐसे याद रखना है। कितनी लैंग्वेज? 14। तो इसी का नाम है मेडिएवल लिटरेचर। आया? पूरी शॉर्ट नोट भेजे में आई दिमाग में कंप्लीट? यस, थैंक यू।